नाम लिख दिया जा सकता है।
प्रधानाध्यापिका महोदय, अन्य पूजन और संचालिका महोदय और प्यारे बच्चों, आज हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज के दिन हम आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। Ms. Alakriti Shukla, I am here to speak a few words about this auspicious day. I feel extremely proud and honored to stand before you and to talk you about the significance of this beautiful day. Today, India is celebrating its 75th Independence Day. There couldn't have been a better moment or hour to remember the sacrifices of our freedom fighters and all the brave souls who have shed their blood and sweat for the independence of our nation. Today, no doubt we are enjoying the fruit of freedom, but we all are indebted to the numerous heroes of the past. Who can forget the charismatic leadership of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Lokmanya Tilak, Shivaji, Bhagat Singh and many more who led the freedom struggle movement in India. They dedicated their whole life only for one vision, which was a free India where every citizen would have a free and independent life. Finally, after a lot of bloodshed, sacrifices and demonstrations, India was free on 15th August 1947. From there on, India was on the path of growth and development. After 75 years of growth and development, India can be proud of a few golden feathers adorning its cap. India's top 5 achievements include maintaining its unity and integrity, remaining a democratic, vibrant country, developing programs that are specific to common man, India's space program as well as India's nuclear missile program. Apart from this, India has commendable achievements in the fields of sports, commerce, infrastructure, medical, education as well as agriculture. Independence is our priceless possession. We, the new generation, has to be really aware of all the sacrifices and bloodshed that have gone into the making of a free and prosperous nation. A country can be proud of its people only when it is sure that its independence and overall growth is secure in the hands of future generations. Before I conclude, I would like to reiterate a quote of Mahatma Gandhi. He said, "A nation's culture resides in the heart and soul of its people. Hence, it is our duty to safeguard our country and its interests in all aspects. Let us together celebrate this 75th Independence Day by paying these tributes to our freedom fighters who have fought for the vision, the independence and this beautiful and ever-growing country that we all are a part of. We owe it all to them. So, with great delight, let me reiterate that I am indeed proud to be an Indian. Once again, a very happy Independence Day to all of you. Jai Hind. उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष आज़ादी के उन 75 वर्षों की गरिमामयी गाथा को पुनर्जीवित करने, जहाँ गुलामी के बाद से ना तो हम कभी रुके और ना ही हमने पीछे मुड़कर देखा। धर्म और साहित्य के क्षेत्र में भारत तो हमेशा से ही अव्वल रहा है, परंतु विज्ञान व अनुसंधान में हमने जो सफलताएं अपने नाम की वे भी अद्वितीय हैं। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए,
सबमरीन बनाई, और जब सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं सभी पर करे दया। इसी कारण समग्र विश्व हमारे समक्ष नतमस्तक है। किंतु एक चीज और ऐसी है जिसमें मेरा भारत सबसे आगे है, और वो है सहिष्णुता। अब ये हमारी सहज शक्ति ही तो थी कि हमने 200 वर्ष की निर्मम गुलामी सहने के बाद भी अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। कहते हैं ना कि सूर्य का तेज बादलों में छिप अवश्य सकता है परंतु मिट नहीं सकता। हमारी सहज शक्ति को कायरता समझने वाले वे अंग्रेज यह भूल गए थे कि बांसुरी बजाने वाला यह देश सुदर्शन चक्र भी उठा सकता है। जब 200 वर्ष की गुलामी और अथाह पीड़ा सहने के बाद हम भारतीयों का रोम रोम आक्रोशित हो उठ जाता है, तो उसी आक्रोश से भरकर हमारे वीर क्रांतिकारियों ने 1857 से लेकर असहयोग व अहिंसा परमो धर्म के साथ साथ करो या मरो और दिल्ली चलो की राह चुनी, और 15 अगस्त 1947 को सभी भारतीयों ने स्वतंत्र भारत का उगता सूरज देखा। आजादी की दास्तान बहुत लंबी है जो वीर बलिदानियों के रक्त, अश्रु व साहस की कलम से लिखी गई है। ऐसे मेरे देश को आजादी क्यों न मिलती जहां छोटी सी उम्र के भगत सिंह मिट्टी में गोलियां बो रहे होते हैं और अंग्रेजों से अपने राष्ट्र की अस्मिता वापस लाने का स्वप्न संजोते हैं। ऐसे मेरे देश को आजादी क्यों न मिलती जहां के चंद्रशेखर आजाद दुश्मनों से अकेले लड़ जाते हैं और मां भारती के लिए शहादत पर दुश्मनों की नहीं अपनी गोली को सर्वोत्तम मानते हैं। आज भी मेरे देश में ऐसे वीरों की कोई कमी नहीं। राष्ट्र के लिए सर्वस्व दान करने वाले, भारत भूमि के एक एक कण की रक्षा के लिए अपना मस्तक तक अर्पण कर देने वाले वे अवश्य ही फरिश्ते हैं, क्योंकि हाड़ मास के पुतलों में इतनी जाबाजी देखने को नहीं मिलती। साइंस कहता है कि कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां और 50 से ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां। तो ये लोग कौन है फिर जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री में तिरंगे के तार कसते हैं, और ये लोग कौन है जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मार के हंसते हैं। भारत यह शब्दकोश का मात्र एक शब्द नहीं है। 135 करोड़ राष्ट्रभक्तों का सम्मान है मेरा देश, और इसकी महानता छिपी है भारतीयता में। यह कोई राष्ट्रीयता नहीं है, यह तो एक भली पूरी शाश्वत विचारधारा है। विवाह से पूर्व मां बनने वाली कुंती को हमने पंच कन्या अर्थात 5 सबसे पवित्र कन्या के रूप में स्थान दिया। नारी के प्रति यह अटूट सम्मान ये भारतीय। 26/11 को मुंबई पर हमला हुआ और आतंक प्रेमियों ने 68 घंटे तक नृशंस हत्याएं की, किंतु जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक सब जागते रहे। मंदिरों की घंटियां तक टूट गई, लेकिन मन्नतें मांगने वाले और सजदे करने वाले स्तनों की कोई कमी नहीं हुई। और जब हम अखबारों में इंदिरा की सीईओ, पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई का नाम पढ़ते हैं तो एक सहज ही मुस्कान हमारे चेहरे पर होती है। बहुत से भारतीयों का इनसे कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, पर फिर भी यह गर्व, यह मुस्कान की विदेश में, दुनिया में सर्वोच्च पद पर आसीन भारतीय है। यह गर्व, यह मुस्कान भारतीयता है। आज प्रश्न ये नहीं है कि हम लोगों ने इन बीते वर्षों में इस शब्द की महत्ता को समझा या नहीं, पर आज दिन है या प्रण लेने का कि जिस भावना पर, जिस भारतीयता पर मेरा देश टिका हुआ है, हम सभी उसे अपने हृदय में संजो कर रखेंगे। आज हम सभी भारतीयों की यही कामना होनी चाहिए कि भले ही हमारा देश 9 मजहबों और 3600 जातियों में क्यों न बटा हो,
पर यदि हम एक साथ किसी के आगे सर झुकाएं तो वो मेरे देश का तिरंगा हो। अपने वक्तव्य का अंत इन पंक्तियों से करते हुए और भारत का महिमा गान इन पंक्तियों से करते हुए अंत करती हूँ। यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, यहाँ रानी लक्ष्मी बाई थी, दोनों हाथों से कर्मवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यावर्त कहलाती थी। धन्यवाद। शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वो तेरा डले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले, वो तेरा डले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले, आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी, आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी, हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, हिंदू बसिया मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे, हिंदू बसिया मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे, सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे, सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे, जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही थे, आजाद ही रहेंगे। Today, the land of India marks a milestone, the platinum jubilee of its independence. And on this auspicious day, I would like to offer my greetings by commemorating an unsung patriot, Madan Lal Dhingra, a hero who sacrificed his life for the nation at a very young age of 25 years. Born in a well-educated and affluent Punjabi family, young man Madan was troubled with the poverty and ill health of India. Finding the cruel oppression being practiced by the British government to ruin India into shatters, he embraced the Swadeshi movement, fighting for the cause. And that was a revolutionary spark in the family of British trustworthies. He was even disgraced by his own family members and his college. Then he decided to move ahead without them. But later he was convinced by his elder brother to
go to London for higher studies, where he met the Indian revolutionaries like Vinayak Damodar Savarkar and Shyamji Krishnalal Verma at India House in 1905. Being outraged by the partition of Bengal, he was planned for the assassination of Viceroy of India and ex-governor of Bengal, but failed. On July 1, in 1909, at Indian Association National Conference, he shot 5 bullets at the face of Sir Lord Curzon Wyllie, who was the then Viceroy of India and was responsible for the partition of Bengal. Madan failed to suicide and later he represented himself in the trial. But when the judge sentenced him to death, he ended his life at the gallows by saying, "Just like an Englishman would kill every German if Germany invaded Britain, so too it is the right of every Indian to kill an Englishman." Poor in wealth and intellect, a son like myself has nothing else to offer to the mother but his India. Vande Mataram, and he led us with an everlasting inspiration with which were inspired the revolutionaries like Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad. Thank you. सुप्रभात। आज़ादी की 75 वर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं हिमाद्री उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताने जिनके विषय में से हम सब में से बहुत कम ही लोग जानते हैं। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर तथा वासुदेव हरि चापेकर तीनों सगे भाई थे। इन तीनों को ही संयुक्त रूप से चापेकर बंधु कहा जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे के चिंचवड़ नामक स्थान पर हुआ था। दामोदर हरि चापेकर सबसे बड़े थे। बचपन से ही सैनिक बनने की इच्छा इनके अंदर थी। महर्षि पटवर्धन तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनके आदर्श थे। दामोदर जी ने ही रानी विक्टोरिया के पुतले पर तारकोल डालकर गले में जूते की माला पहनाकर ब्रिटानी हुकूमत के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया था। तीनों भाइयों ने मिलकर यह संकल्प लिया था कि वे 2 अंग्रेज अधिकारी रैंड और आइसर्ट को नहीं छोड़ेंगे। 22 जून सन 1897 को पुणे के गवर्नमेंट हाउस में राज्यारोहण की हीरक जयंती में दामोदर जी ने रैंड तथा बालकृष्ण ने आइसर्ट को गोली मारकर हत्या कर दी। जयंती में उपस्थित दीनबंधु ने चापेकर बंधु का सुराग पुलिस को दे दिया, जिसके कारण दामोदर हरि चापेकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, परंतु बालकृष्ण चापेकर पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। सत्र न्यायाधीश ने दामोदर हरि चापेकर को फांसी की सजा सुनाई। कारागृह में तिलक जी उनसे मिलने आए और उन्हें गीता भेंट की। 18 अप्रैल सन 1898 को वे फांसी गृह में पहुंचे और वहां पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उधर बालकृष्ण ने जब यह सुना कि उन्हें ना पकड़ पाने के कारण उनके सगे संबंधियों को सजा सुनाई जा रही है, तो वे स्वयं पुलिस थाने जाकर वहां उपस्थित हो गए। इधर उनके छोटे भाई वासुदेव हरि चापेकर ने गद्दार दीनबंधुओं को गोली मारकर हत्या कर दी। इस कारण 8 मई को वासुदेव को तथा 12 मई को बालकृष्ण को फांसी की सजा सुनाई। इस प्रकार चापेकर बंधुओं ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इन क्रांतिकारियों को मेरा शत शत नमन। जब प्रफुल्ल जी 2 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। उनके पालन पोषण का कार्य उनकी माता द्वारा अत्यंत कठिनाई से किया गया। अपने विद्यार्थी जीवन में ही प्रफुल्ल जी का परिचय स्वामी महेश्वरानंद जी द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन से हुआ। वहां उन्होंने अनेक क्रांतिकारियों के विचारों का अध्ययन किया और देश प्रेम की भावना उनमें बलवती हो गई। बंगाल विभाजन के समय अनेक लोग क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लिए। प्रफुल्ल जी एवं अनेक छात्रों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उस समय प्रफुल्ल जी रंगपुर जिला स्कूल के कक्षा 9 के छात्र थे। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण
प्रफुल्ल जी को स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद प्रफुल्ल जी क्रांतिकारियों के युगांतर पार्टी में सम्मिलित हुए। उन्होंने कोलकाता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड का क्रांतिकारियों को अपमानित करने एवं उन्हें दंड देने के लिए कड़ा विरोध किया। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को जान से मार डालने का निर्णय लिया। अतः 30 अप्रैल 1908 में जब किंग्सफोर्ड यूरोपियन क्लब की ओर अपनी बग्घी में सवार होकर प्रस्थान कर रहे थे, तभी क्रांतिकारी दलों ने उन पर बम फेंक दिया, जिससे तत्काल ही किंग्सफोर्ड की मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने आज़ादी की इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभात, मैं जोया सिराज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को खुदीराम बोस जी के बारे में अवगत कराने के लिए। खुदीराम बोस जी का जन्म बंगाल के मिदनापुर जिले में हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम बोस जी बहुत छोटे ही थे तभी इनके माता पिता का निधन हो गया था। ये रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने एवं जन जागरण के लिए वंदे मातरम पत्रक बांटने का कार्य करते थे। क्रांतिकारी दल के नेता वीरेंद्र कुमार द्वारा खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद को किंग्सफोर्ड को मारने के लिए चुना गया। खुदीराम बोस जी ने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंककर हमला कर दिया, जिसके कारण किंग्सफोर्ड की माँ बेटी की मृत्यु हो गई। इन पर हत्या का मुकदमा चला। 8 जून 1908 को इन्हें अदालत में पेश किया गया। 13 जून को इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। 11 अगस्त 1908 को मात्र 19 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस जी को फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। खुदीराम बोस जी पहले ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए हाथ में श्रीमद् भगवत गीता लेकर फांसी के फंदे पर झूल गए। इनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। इनके साहस एवं बल ने हिंदुस्तानियों में आज़ादी की एक नई ललक पैदा कर दी। भारत माता का सीना तब गर्व से फूल उठा, भारत माता का सीना तब गर्व से फूल उठा, जब मात्र 19 वर्ष का खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी पर भूमिका निभाई। Good morning everyone. Happy 75th Independence Day to all of you, and I am going to present Shivaram Hari Rajguru's life story. Shivaram Hari Rajguru was born on 24 August 1904 as an Indian revolutionary in the state of Maharashtra, which is mainly known for its involvement in assassination of British police officer named Saunders. At the age of 6, his father was died, and due to this levied his family's responsibility onto his elder brother Dinha. Rajguru received primary education at Khed and later he studied in Pune. At a young age, he joined Seva Dal and he attended training under Dr. N.S. Hardikar held at Ghar Prabha. He became a member in Hindustan Socialist Republic Association who want to depon British throughout of India. He became colleague of Bhagat Singh and Sukhdev, who took part in the assassination of John Sanders to take revenge of Lala Lajpat Rai's death, being hit by police during a protest against Simon Commission. All three were convicted in the case. In 23rd March 1931, the Rajguru was hanged out by the British government along with Bhagat Singh and Sukhdev Thapar. Thank you. 24-year-old martyr who gave up his life for India. He was none other than Sukhdev Thapar. Sukhdev himself took part in several revolutionary activities. He would always be remembered in the chronicles of the Indian struggle movement for his daring yet courageous struggle at Lahore conspiracy case that shook the very foundation of the British government. He was one of the memorable members of the Hindustan Republican Association. He took part in several actions along with Bhagat Singh and Shivaram Rajguru. After the Central Assembly Hall bombing in New Delhi, Sukhdev and his accomplices were arrested and sentenced to death. Thank you.